بابا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان ملکوں اور خانوں کے بیگار یا آپ کریں گے یا میں، میرے بچے نہیں، کیونکہ آج کے بعد اس گھر میں بچہ پیدا نہیں ہوگا اور نہ کوئی غلام رہے گا۔ اور تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم ہمارے سامنے کھڑے ہو کر ہم سے پوچھتے ہو؟ کیوں؟ ہم آپ کے زرخرید غلام ہیں کیا؟ اور مولوی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زور زبردستی سے بھی کبھی شادی ہوئی ہے؟ بابا دشمن چاہے گھر کا ہو یا باہر کا، دشمن دشمن ہوتا ہے۔ ایسا کیوں نہیں کہتے بابا کہ آپ کا ایمان کمزور ہو گیا ہے؟ اور مجھے تو لگتا ہے بابا کہ جسمانی کمزوری کے ساتھ غیرت بھی کمزور ہو گئی ہے۔ چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ میں تو کہتا ہوں کہ ملک صاحب کے پاس ایک دفعہ پھر جانا چاہیے ہمیں، اس کی تھوڑی منت سماجت کروں گا، ہو سکتا ہے وہ مان جائے اور ہمارے ساتھ اسکول کی افتتاح کی خوشی میں وہ بھی شامل ہو۔ صوبیدار صاحب، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ملک صاحب اس گاؤں میں اسکول نہیں چاہتا، تعلیم نہیں مانتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسکول کے افتتاح کے لیے یہاں پر آئے؟ بس آپ کو ایک درخواست کرنی ہے۔ صوبیدار حکم کریں، ہم تو سرکاری لوگوں کے خدمتگار ہیں۔ ملک صاحب اب تو مجھے سرکاری مت کہو نا، اب تو میں ریٹائر ہو گیا ہوں۔ ارے نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ اگر ریٹائر بھی ہو جائیں تب بھی ہمارے سروں پر کھڑے رہتے ہیں۔ کیوں منشی، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نانا ملک صاحب، خدا نہ کرے کہ آپ غلط بولیں جی، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ انہوں نے ابھی بھی ہمارے گاؤں میں لوبا گرم کیا ہوا ہے۔ کون سا لوبا؟ جی ملک صاحب، اس شاہ جی کا کچھ اتا پتا ہے یا نہیں؟ اور ملک صاحب شاہ جی تو جیل میں ہے نا، وکیل صاحب کہتے ہیں کہ جلدی ضمانت ہو جائے گی۔ ہیں جی آپ کی دعا سے۔ اپنے بیان پر تو قائم ہے نا؟ اور ملک صاحب شاہ جی کوئی کمزور آدمی تو نہیں ہے نا، وہ پھانسی چڑھ جائے گا لیکن آپ کا نام جو ہے نا اپنی زبان پہ نہیں لائے گا، آپ کی دعا سے۔ ہاں، ایک کبھی نہ کبھی اسے خرچہ ورچہ بھیجا کرو۔ ضرور جی ضرور، کیوں نہیں جی۔ السلام وعلیکم علیکم۔ السلام۔ آؤ آؤ صوبیدار، بیٹھو، تشریف رکھو۔ صوبیدار آج صبح صبح ہمارے ڈیرے پر آئے ہو، خیر تو ہے نا؟ جی ملک صاحب خیریت ہے، بس آپ کو ایک درخواست کرنی ہے۔ صوبیدار حکم کریں، ہم تو سرکاری لوگوں کے خدمتگار ہیں۔ ملک صاحب اب تو مجھے سرکاری مت کہو نا، اب تو میں ریٹائر ہو گیا ہوں۔ ارے نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ اگر ریٹائر بھی ہو جائیں تب بھی ہمارے سروں پر کھڑے رہتے ہیں۔ کیوں منشی، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نانا ملک صاحب، خدا نہ کرے کہ آپ غلط بولیں جی، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ انہوں نے ابھی بھی ہمارے گاؤں میں لوبا گرم کیا ہوا ہے۔ کون سا لوبا؟ وہی جی، وہ اسکول والا لوبا ہے جو اسکول کھلا ہے۔ آپ کی آپ کی دعا سے ملک صاحب اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ہمارے اسکول کا افتتاح کریں۔ کیا کہا؟ میں خود افتتاح کروں؟ یعنی اپنے لیے خود قبر کھودوں؟ اللہ نہ کرے ملک صاحب، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ میرے گاؤں میں اس قسم کے کام مت کرو؟ ایسا لگتا ہے کہ تم شاید شرافت کی زبان نہیں سمجھتے۔ اور صوبیدار صاحب تھوڑی عقل سے کام لو۔ ملک صاحب نے انکار کر دیا اور آپ یہاں پہ کھڑے ہو، شاباش جاؤ اپنا کام کرو یار۔ لیکن میں تو ملک صاحب کو عزت دے رہا ہوں۔ اور شمشیرہ، شمروزہ، اخترہ، یہ صوبیدار صاحب کو حجرے سے باہر نکالو یار۔ چپ کرو، میں خود جا سکتا ہوں۔ نکلو یہاں سے۔ جاتا ہوں۔ خیر ہے ملک صاحب، خیر ہے، زیادہ غصہ نہ کرے ہیں جی،
دل کو تھوڑا ٹکور دیں، ٹکور۔ خیر ہے جی، ملک صاحب بہت دن ہو گئے جی، وہ ککڑو کوں نہیں کھایا جی، مہربانی کریں ککڑو کوں تو منگوائیں۔ الحمدللہ۔ زینب بیٹا، عشاء کی اذان ہو رہی ہے، قادر نہیں آیا، بہت دیر کر دی اس نے۔ پاپا، ملک صاحب کا منشی گلداد اس سے بہت زیادہ کام لیتا ہے، رات دیر تک اسے گھر نہیں چھوڑتا۔ کون ہے بھائی؟ بابا، ہو سکتا ہے لونگین بھائی آیا ہو۔ لونگین ہوں جی۔ آ جاؤ لونگین، آ جاؤ۔ خوش آمدید، خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں بابا آپ؟ طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ بیٹا، بس ٹھیک ہوں۔
जैसी भी गुजर रही है गुजर जाती है। शुक्र शुक्र है इस हाल पे। ज़ैनब बहन, आप कैसी हो? अल्लाह का करम है लाला, बस गुजर ही रही है। जैनब बेटा, लाला के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो। ठीक है बाबा, जाके थोड़ी देर में बनाती हूँ। नहीं नहीं, मैं खाना खा के आया हूँ। बस बताना था कि सुबह शहर जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि अगर सितारा को कोई पैगाम भिजवाना हो तो मुझे बता दे। सितारा को क्या पैगाम भेजूं बेटा? जब से उसकी शादी हुई है उसके बाद उसको देखा ही नहीं। ना वो यहाँ आई है और ना हम उसके पास गए हैं। अगर तुम मिलने जाओ बेटा तो उसको कहना कि बाबा तुम्हें बहुत याद करता है। जिंदगी और मौत की कोई खबर नहीं है बेटा, हमने बख्श दिया है, वो भी हमें बख्श दे। अल्लाह खैर करेगा बाबा। जिंदगी में से मुश्किल हालात आते रहते हैं, लेकिन नौमीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। इंशाअल्लाह एक दिन ये मुश्किल खत्म हो जाएगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कादर खान नजर नहीं आ रहा, घर नहीं आया। वो जालिम गुद्दाद उससे बहुत काम लेता है, रात गए तक उसे नहीं छोड़ता। लेकिन क्या करे लाला, कर्जदार जो ठहरे। अल्लाह सब ठीक कर देगा। एक न एक दिन हमारी सारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी और ये जंजीरें एक न एक दिन जरूर टूटेंगी। हाँ बेटा, इसी दिन के आशे पे तो जिंदा है कि एक दिन हम पे भी अच्छा वक्त आ जाएगा। लेकिन असल से सूद इतना ज्यादा है बेटा कि हर महीने कर्ज और बढ़ जाता है। बस इसी इंतजार में है कि एक दिन अल्लाह हमें भी खुशियों से नवाजेगा। बाबा, सूद एक ऐसी लानत है कि नस्लों को मिटा देती है, खत्म कर देती है, लेकिन ये सूद खत्म होने का नाम नहीं लेता। अच्छा बाबा, मैं चलता हूँ, सुबह जाने मैंने शहर। नहीं लाला, आप बैठे, कुछ तो खा के जाएं। नहीं ज़ैनब बहन, मैं खाना खा के आया था। अब सुबह जा रहा हूँ शहर, शहर से वापस आऊंगा तो खा लेंगे ना। चलता हूँ बाबा। अल्लाह के हवाले बेटा, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना। कौन? कौन है? गांव से आया हूँ, लवंगीन हूँ। आए आए, अंदर आए। ऐसे ही आ जाओ, कोई सवाल जवाब है तो उधर ही कर लो, जरूरत नहीं है इसको अंदर घर लाने की। ठीक है ठीक है। सितारा, तुम कैसी हो? ठीक तो हो ना? खुश हो? मैं ठीक हूँ। गांव में क्या हाल है? कादर लाला कैसे है? बाबा, ज़ैनब भाभी, बाकी छोटे बड़े कैसे हैं? ये फजूल बातें छोड़ो, अब तुम्हारा उनके साथ क्या काम है कि छोटे बड़े कैसे हैं? बीबी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सितारा, बाबा ने कहा था कि वो तुम्हें लेने कुछ दिनों बाद खुद आएगा। क्या 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 कहा? एक बार फिर से कहो। बीबी, मेरा मतलब है कि सितारा के घर वाले इसको देखना चाहते हैं, कुछ दिनों के लिए गांव चली जाएगी। अच्छा, तो तुम खाली हाथ इन बातों के लिए आए हो कि उनको याद आई हो? मैं समझी कोई तोहफे लेकर आए होगे, तुम तो खाली हाथ आए हो। और ये लड़की, ये घर के काम तुम्हारी माँ अगर करेगी। बीबी, शाह महमूद घर पे है, मैं उससे जरा बात करना चाहता हूँ। वो कैद में है, जेल में है 6 महीनों के लिए। अच्छा,
एक बार फिर सलाखों के पीछे। बीबी, शमामूद वैसे भी घर पे नहीं है, तो अगर सितारा कुछ दिनों के लिए गांव चली जाए। अंदर आए ना, हमने तो आते साथ आपके साथ बातें शुरू की, चाय पानी का भी नहीं पूछा। नहीं नहीं, चाय की जरूरत नहीं है, इसको पानी पिला दो, दूर से आया है, प्यास लगी होगी। देखिए जी, मैं कहना चाह रहा था कि मैंने एक दफा कह दिया है ना, कान खोल के सुन लो। ये इस घर की बहू है और तुम क्या बेशर्म हो कि हर दूसरे दिन यहाँ आ जाते हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि इसका शौहर जेल में है, जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। ए लड़की, तुम तो अंदर जाओ, घर के काम करो, मैं तुम्हारे साथ देखती हूँ। ये कौन है? ये हर दूसरे दिन तुम्हारे पीछे आ जाता है। तुम्हारे शौहर जेल में है और तुम हर वक्त दरवाजे में खड़ी रहती हो, काम काज तुम करती नहीं हो, और ये आ जाता है कि तुम्हें गाँव लेकर जाएगा। लड़की, ये रोना धोना बंद करो। ये घर का काम तुम्हारी माँ आकर करेगी। उठो, घर का काम करो, जाके आटा गूंदो। अभी रियाज आ जाएगा ना, तो फिर तुम्हें बातें सुनाएगा। उठ जाओ और बस करो। जब से तुम हनूस इस घर में आई हो, हमने खुशी का एक दिन नहीं देखा। माँ, तुम सितारा से ये पूछो, ये लवंगीन इसका क्या लगता है जो हर वक्त यहाँ आता रहता है? वो मेरे पड़ोसी है, मेरा अपना है, हम एक ही घर में बड़े हुए हैं। सितारा, मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों, मैं तुम्हें क्या नजर आती हूँ? मुझे तो ये दाल ही काली लग रही है। मुझे लगता है ये जरूर कोई तुम्हारा पुराना आशिक है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? बेशर्म, बेगैरत, बेहया। ए लड़की, अपनी जबान को लगाम दो, नहीं तो क्या? तुम क्या कर लोगी? मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगी, तुम्हारी जबान काट लूंगी। मेरा बेटा एक बार जेल से आ जाए ना, तो मैं उससे कह के तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। हाँ अम्मा, भाई का इंतजार क्यों करें? ये तुम्हारे साथ जबान लड़ाती है, तुम्हारे साथ बहस करती है। छोड़ो कि इसकी हड्डी पसली एक कर दूं और इसकी खाल उधेड़ दूं। अच्छी तरह मारो इसे। ये क्या हो रहा है? अब तो देख रहे हो ना, अब तो सब कुछ देख रहे हो ना। अल्लाह मेरे ऊपर रहम करो। या अल्लाह, इस गुलामी से तुम बहुत अच्छा है। या अल्लाह, इसे तुम बहुत अच्छा है। या अल्लाह, मुझे इस गुलामी की जंजीरों से आजाद कर दे। या अल्लाह, मुझे लोगों की गुलामी से आजाद कर दे। अल्लाह। मलक साहब, शहर जा रहे हो, मेरी तरफ से सरवर को बहुत प्यार करना। मैं बहुत खफा हूं उसके लिए, माँ हूं ना। अरे बीवी, अगर मैं उससे ऐसी बातें करूंगा ना, तो वो तालीम छोड़कर मेरे साथ घर आके बैठ जाएगा। क्यों घर बिठाना चाहती हो उसे? क्या करूं मलक साहब, माँ हूं ना। मेरा दिल बड़ा बेचैन है। वहाँ पता नहीं कुछ सही तरीके से खाता पीता होगा या नहीं। बात सुनो, तुम क्यों ऐसी बातें करती हो? उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, फिक्र मत करो। और दूसरा, वो शाह महमूद, और वो तो है ना, उसकी खबर लेता रहेगा। सब वहां हैं, और शमरोज है, शौकी है, वो उसको उसकी जरूरत की हर चीज ला के देते हैं। तुम क्यों फिक्र करती हो? मैंने देसी घी में उसके लिए कुछ चीजें तैयार की हैं, वो भी आप साथ लेकर जाना। मरजान, ओ मरजान, मरजान, एक तो ये एक आवाज पर नहीं आती।
जी बीबी जी। दे दो ये चीजें मलक साहब को। मलक साहब ये जाते हुए अपने साथ ले जाए। अरे बीवी, तुम क्यों अपने आप को थका रही हो? तुम क्यों फिक्र करती हो? वहां पर लड़के हैं, शौकी है, शमरोज है, सब हैं वहां पर। उसकी जरूरियात की हर चीज ला के देते हैं उसको। ऐसी लगी रहती हो, ऐसी अपने आप को थका रही, फिक्र करती रहती हो। मत करो फिक्र, छोड़ दो उसको, पढ़ने दो। फजूल लगी रहती हो। जालिम इंसान है ये, जालिम इंसान। उसके लिए मैं जो कुछ भी बनाऊं ये साथ लेकर नहीं जाता, यही छोड़ देता है। जाओ यहाँ से। मेरी शक्ल पर खड़ी और मेरी बातें सुन रही है। ओहो, आप फिक्र ही न करें जी, हर चीज ठीक और ठाक हो जाएगी आपकी दुआ से। चलो चलो चलो, शाबाश। पेट्रोल जी, चलो। बात सुनो, ये कैसा ऐलान है? सूबेदार साहब ने जो स्कूल खोला हुआ है उसमें किताबें कापियां मुफ्त दी जाएंगी। तुम्हारे बच्चे मुफ्त में तालीम हासिल करेंगे। मेरे भाइयों, ये ऐलान एक दफा फिर सुन लो। अपने बच्चों को स्कूल ले आओ, किताबें कापियां मुफ्त मिलेंगी। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये ऐलान फिर सुन लो। सूबेदार साहब ने जो स्कूल खोला हुआ है उसके लिए बच्चों को जल्दी जल्दी ले आओ, क्योंकि सारी सहूलतें मुफ्त हैं। ए गांव के लोगों, ये एक जरूरी ऐलान फिर सुन लो। सूबेदार साहब ने जो स्कूल खोला हुआ है उसमें सारी सहूलतें मुफ्त हैं। आप लोग भी आ जाएं। मेरे अजीज भाइयों, अपने बच्चों को लेकर आओ, क्योंकि वहां पर कलम, दवात, कापियां, किताबें सब कुछ मुफ्त है। मलिक साहब, आज थोड़े बेसुरे से हो। अरे यार मलक, आपसे हम खफा हैं। किस बात पे? जब से तुमने पार्लियामान का रास्ता देखा है, हमें पूछते ही नहीं हो। अरे नहीं मलिक साहब, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तो बेकार सा मुंशी है ना, इसका भी ताबेदार हूं। क्यों नहीं मलिक साहब, क्यों नहीं? इलेक्शन में तो हमने आपके लिए इतने ठप्पे लगाए हैं कि अभी तक हमारी ये उंगलियां दुख रही हैं। आपकी दुआ से, दुआ से। चुप करो मुंशी, ये तुम क्या कह रहे हो? ये बातें खुलम खुली करने वाली नहीं होती। क्यों मलिक साहब, माल चाहिए क्या? अरे मलिक, माल नहीं, मेरे आले वाल को देखो। एक छोटे से काम का तुमको बोला था, तुमने वो भी नहीं किया। ऐसा कौन सा काम है जो मैंने नहीं किया? हुक्म करो। अरे यार, वो तुमको मैंने सूबेदार का कहा था ना, उसने हमारे गांव में स्कूल खोल लिया यार, और लोग भी उसका साथ दे रहे हैं। तुम एक सूबेदार को नहीं संभाल सकते यार? अगर कहो तो रास्ते से हटा दूं? यार, सरकारी बंदे को इस तरह हटाना कोई आसान काम नहीं है। ऐसा काम करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो फिर सुनो, एक सियासी दांवपेच तुम्हें बता रहा हूं। प्रिंसिपल साहब, हमें मलक दिलावर ने मुंशी साहब के साथ आपका शुक्रिया अदा करने के लिए भेजा है। इस बच्चे का रिपोर्ट बहुत अच्छा है। मलक साहब आपसे बहुत खुश है। उन्होंने आपके लिए कुछ तोहफे भेजे हैं। इन तकल्लुफात की क्या जरूरत थी जी? नहीं जी नहीं, तो कल्फात की क्या बात है। देखें, ये हमारे मलक साहब जो है ना MNA हैं, और ये हमारे कशर खान है ना, ये भी आपके स्कूल में पढ़ के एक दिन बड़े MNA बनेंगे हैं जी।
हाँ बस इसी तरह होता है ना जी। इंशाल्लाह एमएनए का बच्चा एमएनए बनेगा और मेरा पुत्र इंशाल्लाह मुंशी है। नेक्स्ट इनका मुंशी मेरा बेटा ही होगा ना, है जी। और मलक साहब ने कहा है कि वो इतने खुश हैं ना, इंशाल्लाह मलक साहब आएंगे और इंशाल्लाह आपके घर में रोटी खाएंगे जी। मतलब है जी वो आपको बुलाएंगे ना तो आपको खाना खिलाएंगे ना जी। ठीक है जी, ठीक है। हमारे मलक साहब बहुत खुश हैं, आप इसका बहुत ख्याल रख रहे हैं जी। बस मजीद इसका खूब ख्याल जी जी, रखें हमारा जी। भी बच्चा है। और हाँ, मैं आपके लिए 2 दर्जन अंडे लाया हूँ, चौकीदार के पास पड़े हैं। इंशाल्लाह आप खाएंगे तो आपके गाल और ज्यादा सुर्ख हो जाएंगे इंशाल्लाह जी। हैं जी, हैं जी। प्रिंसिपल साहब, मुंशी की बात पर खफा मत होना। मुंशी साहब थोड़ा सा मजाक ही है। अच्छा हम चलते हैं, अब मजा आया। जी, मुंशी साहब बड़ी अच्छी बातें करते हैं। कसर खान। अल्लाह। अजीब बंदा है ये भी, तो बड़ा ही मजाकिया बंदा है। शमरोजे, घर तो यही है ना? शाबा खटखटाओ। रियाज, रियाज, दरवाजा खोलो। आ रहा हूँ ना यार, दरवाजा तोड़ोगे क्या? पागल हो गए हो, एक ही बार शुरू हो गए हो। आ रहा हूँ। हो, ये तो मेरे यार आए हैं। ओ खुश आमदेद, खुश आमदेद। क्या हाल है यार? तबीयत ठीक है आप लोगों की? हम ठीक है, तुम बताओ तुम ठीक हो? बिल्कुल, अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। इधर बाहर ही क्यों खड़े हो? अंदर आओ यार कि तुम लोगों को कुछ खिलाऊं पिलाऊं, कुछ जूस शरबत चाय। नहीं नहीं, हम राज के आए हैं, हम सिर्फ पता करने आए शाह महमूद का। हैं? ये बताओ कि क्या हाल चाल है, तुम मुलाकात के लिए गए थे या नहीं? हाँ हाँ गया था मैं, खूब खुश है, मजों में है। और शाह महमूद कह रहा था कि जेल तो मेरा दूसरा घर है। इतना खुश है, इतने मजों में है कि क्या बताऊं तुम्हें। अच्छा अच्छा, बस बस। शमरोजिया, अच्छा इस तरह है पुत्र, ये कुछ पैसे हैं, रुपए हैं, ठीक है ना? हैं? ये घर में दे दो। अच्छा शमरोजिया। हाँ ये भी ले लो। शाह महमूद के मेहमान आए ना, ये उनको दे देना। हाँ हाँ समझ गया हूँ जी, खालिस माल है, पहुंच जाएगा, फिक्र ना करो आप लोग। अच्छा रियाज, बात सुनो यार, जब तक ये शाह महमूद नहीं आता ना, ये सारा कारोबार तुम संभालोगे, ठीक है ना? और याद रखो, हिसाब में गड़बड़ ना करना। अच्छा, मलक साहब को तो जानते हो ना, कसम खुदा की भूसा भर के उल्टा लटका देगा, जान समझा लो। अच्छा, फिर बाद में हमें गिले नहीं करना। अच्छा? ओ नहीं नहीं शौकी साहब, बेफिक्र रहो, और मुझे पता है ना यार। हाँ रियाज, बच्चे हम जा रहे हैं गांव। अच्छा, और तुम मुलाकात को गए ना, तो हम दोनों का बहुत बहुत सलाम कहना। बहुत बहुत सलाम पहुंचा दूंगा जी। आप जाएं जी, बेफिक्र हो जाएं जी। अल्लाह के हवाले। अस्सलाम वालेकुम, रब राखा, अल्लाह हाफिज। आधे अम्मा को दे दूंगा, आधे अपने पास रख लूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। और हमने भी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता इख्तियार किया और इस गांव में एक स्कूल खोला। और ये जो स्कूल है, ये मेरे ज़ाती ख़र्चे पर बना हुआ है, और इसमें तुम लोगों के बच्चे मुफ्त तालीम हासिल करेंगे। और मैं जो हूँ, मैंने सारी उम्र फ़ौज में गुजार दी है, और मैं इल्म की बहुत कदर करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए और मेरे साथ खुशी के इस नेक काम में आप शरीक हुए। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से, और मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो रही है कि मेरे इस गांव के बच्चे तालीम हासिल करें, और इस तरह ये गांव तरक्की के रास्तों पे गामजन हो जाएगा और हम गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन ये स्कूल आप लोगों के ताउन से चलेगा। सूबेदार साहब, आप फिक्र ना करें, हम हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं।
माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाक अल्लाह। तो बस फिर आप कल ही से अपने बच्चों को स्कूल भेजें। सूबेदार साहब बिल्कुल फिक्र न करें, हम आपके शाना बशाना खड़े हैं। लेकिन लेकिन क्या? साफ साफ बात करो, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। सूबेदार साहब, आप तो फौजी आदमी हो, आपको क्या परवाह। लेकिन हम तो इस गांव में जिंदगी गुजार रहे हैं और हम सब मलिक के तसल्लुत में हैं और ये मलिक के आदमी हैं। मलिक साहब की परवाह नहीं करोगे? तुम लोगों की अपनी जिंदगी, अपनी जमीन और अपना इख्तियार है। बिल्कुल ठीक फरमाया सूबेदार साहब, अपनी मट्टी अपना इख्तियार। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। मेरे भाइयों, तुम लोगों के इल्म में हो या ना हो, तुम लोग ये बात जानते हो या नहीं जानते कि मेरी कोई औलाद नहीं है, लेकिन इस गांव का हर एक बच्चा मुझे ऐसे अजीज है जैसे मुझे अपना बच्चा अजीज होता। और मैंने अपने साथ ये अहद किया हुआ है कि मैं इस गांव के बच्चों की तरबियत करूंगा और मैं इन्हें अच्छी तालीम फराहम करूंगा, न सिर्फ इस गांव के लिए बल्कि पूरे मुल्क और उसकी खुशहाली के लिए। और ये सब कुछ आप लोगों के ताउन से होगा कि आप अपने बच्चों को बाकायदगी से रोज़ाना स्कूल भेजें और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि ये बच्चे बड़े होकर बड़े बड़े अफसर बनेंगे और फिर ये अपने मुल्क की खिदमत करेंगे और इसकी तरक्की का बायस बनेंगे और फिर हम अपने इन बच्चों पर फख्र करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इसी तरह मेरे साथ खड़े रहे, मेरे साथ ताउन करते रहे, तो मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है और मुझे कोई भी गम नहीं है, क्योंकि मेरे भाई मेरे साथ इस नेक काम में खड़े हैं। और मेरे भाइयों, हमारा मकसद नेक है, हमारा अज़म और हमारी कोशिश जो है हमारे बच्चों के लिए, इस कौम के लिए, इनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें सुरखरू करेगा और हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। और यही बच्चे हमारे मुस्तकबिल हैं और इंशाअल्लाह यही बच्चे हमारे मुल्क और हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे और हमारे गाँव में ये जो जहालत के अंधेरे हैं ये इल्म की रोशनी से ही दूर होंगे। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे साथ खड़े हो गए और इंशाअल्लाह इस तरह आप मेरे साथ रहेंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। मलक है बाहर। हाँ शोखी, क्या खबर लाए हो?